Welcome students in your physics class and I hope you all will fine. And students, today I am going to discuss some special cases. Okay, as I have discussed in my previous class, I have derived the formulas of final velocities after the collision, and we'll see here when we apply these conditions then what they gives us. The first condition is what? If mass of two bodies are same, that is m1 is equal to m2 is equal to m. Here I have taken the equal masses. When the bodies which having equal masses collide to each other, then what will be the final velocities of those bodies? Okay, then find from these formulas which we have derived in my previous class. v1 is equal to आपको मिला था m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus twice m2 upon m1 plus m2 u2, and v2 is equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 and plus twice m1 upon m1 plus m2 u1. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, m1 को m2 से रिप्लेस किया, m2 को m1 से रिप्लेस किया। इस तरह से m1 को m2 से और m2 को m1 से रिप्लेस करेंगे तो m2 plus m1 मिलेगा, उसको आप m1 plus m2 लिख सकते हैं। ठीक है, u1 को u2 से रिप्लेस किया है, यहाँ पर u2 को u1 से रिप्लेस किया, इस तरह से हमें v2 मिलता है। ठीक है, तो v1 से हमें v2 फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं प्रीवियस क्लास में ड्राइव कर चुका हूँ इन दोनों फॉर्मूलाज को। Now today I will only discuss about the conditions. Okay, in my first condition I have taken equal masses. These equal masses collide to each other. Okay, then what will be the final velocities? v1 will be equals to, because m1 m2 equals to m, so we will, when we put m1 m2 m, okay, so they will cancel out and you will get 0. Okay, so this term becomes 0, and because here it is u1, so 0 into u1 and plus as you put m1 as m2, then it becomes twice m2, and ऊपर भी twice m2 है, they will be cancel out to each other, then finally you will get u2. okay, तो इस तरह से v1 आपको मिलता है u2. clear? Now students will find v2. How will find this v2? Putting these values m1 and m2 as m, then you will get v2 is equal to, here they will cancel out to each other, then finally you get 0 into u2 plus, here let's take this m2 as m1 because both are equal, so it becomes twice m1 is cancel out to each other, then finally you will get u1. okay, now this v2 is equal to u1. so here students, what you got here, what you get actually, this final velocity of first body is equal to initial velocity of the second body. This v1 is what? v1 is the final velocity. यहाँ suppose करिएगा दो बॉडी हैं, एक u1 स्पीड से मूव करती है, दूसरा जो u2 से, दोनों कोलाइड करती हैं। कोलिजन के बाद में इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है और इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। ठीक है, इसका मास भी आपने लिया है, इसको आप ले लीजिएगा m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2। यहाँ पर आपने m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिया, इस कंडीशन के लिए आप ले लें। तो व्हाट यू सी स्टूडेंट्स, यू सी आफ्टर collision, when the equal masses bodies actually collide to each other, then after collision the velocities will exchange हो जाती है। velocities means जो फर्स्ट बॉडी है collision के बाद में, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी एज अ सेकंड बॉडी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बॉडी एक्वायर कर लेती है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को, और सेकंड बॉडी एक्वायर कर लेती है फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी को। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट बॉडी है कॉलिजन के बाद में, फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सेकंड बॉडी के इक्वल हो जाएगी। सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कितना था बिफोर कॉलिजन? u2। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन v1 क्या हो जाएगा? u2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड बॉडी है उसका वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी के सेम हो जाता है, फर्स्ट बॉडी के इक्वल हो जाता है। तो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी v2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? u1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हमें फॉर्मूले से मिलता है, हमने फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया, हमें कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मिलता है कि जो v1 है कॉलिजन के बाद में, जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, वो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। दिस u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। इसी तरह से सेकंड बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो, ठीक है, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है, v2 इज इक्वल टू u1। इस तरह से हम देखते हैं कि जब मासेस इक्वल होते हैं और वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तब उस केस में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स सेकंड बॉडी को अगर हम रेस्ट में ले लें तो u2 0 हो जाएगा, u2 0 हो जाएगा।
और इसका वेलोसिटी हम ले लेते हैं u, फास्ट बॉडी का, ठीक है। अब क्योंकि u इससे ज्यादा है u2 से, u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, जब ये बॉडीज कोलाइड करती हैं एक दूसरे से, तो हम क्या देखते हैं, ये बॉडी इससे आकर के टकराती है, क्योंकि ये सेकंड बॉडी रेस्ट में है, ये जब इससे आकर के टकराती है तो ये अपनी वेलोसिटी को सेकंड बॉडी को प्रोवाइड कर देती है एक्चुअली। तो दिस फर्स्ट बॉडी गिव्स इट्स वेलोसिटी टू द सेकंड बॉडी एंड द फर्स्ट बॉडी कम्स इनटू द रेस्ट, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तो इसने अपनी कंप्लीट एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी कॉलिजन के बाद। तो कॉलिजन के बाद हम क्या देखते हैं कि ये बॉडी यहाँ आती है और इस तरह से आकर के इससे टकराती है, और टकराने के बाद में अब ये बॉडी रेस्ट में हो जाती है, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में हो जाती है और अपनी टोटल एनर्जी ओके ट्रांसफर कर देती है टू द सेकंड बॉडी। अब सेकंड बॉडी जो मूव करेगी वो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी से मूव करेगी। इसका मींस ये हो गया कि जो v2 होगा वो एक्चुअली u के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके पास फर्स्ट बॉडी के पास वेलोसिटी कितना था, u था, और इसने अपनी u वेलोसिटी को कॉलिजन के टाइम में सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर दिया, और सेकंड बॉडी क्योंकि रेस्ट में थी उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, ठीक है। तो अब इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो अब सेकंड बॉडी का वेलोसिटी हो जाता है u और फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं, ये भी दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें एक को हमने रेस्ट में लिया है। फर्स्ट केस में दोनों बॉडी मूव कर रही थी, एक u1 से और सेकंड बॉडी u2 से मूव कर रही थी, ठीक है, और मासेस दोनों के क्योंकि सेम थे, इक्वल मासेस के लिए हम ये कंडीशंस ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड केस में हमने सेकंड बॉडी को रेस्ट में ले लिया है, ठीक है, और फर्स्ट बॉडी u से मूव करती हुई आती है और इससे टकराने के बाद अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर देती है और खुद रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो उसका पोजीशन सेकंड वाली बॉडी के सेम हो जाता है और सेकंड वाली बॉडी का जो पोजीशन है वो, ठीक है, फर्स्ट बॉडी के सेम हो जाता है। जो चीज फर्स्ट बॉडी के पास थी वो अब सेकंड बॉडी के पास आ गई, और जो सेकंड बॉडी के पास थी वो फर्स्ट बॉडी के पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, सेकंड केस इसमें क्या है, इसका एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहाँ पर ये दो बॉडी हमने ली है 2 किलोग्राम की, ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है इस डायरेक्शन में, सेकंड बॉडी goes along this direction with this velocity 1 meter per second. Then what happened when they collide to each other? Then you will see when they collide to each other, the second body gives its velocity to the first body and first body gives to its velocity to the second body. Okay, they will exchange its velocities. Now here, after collision, you will see here the first body moves along this direction with velocity 1 meter per second. ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के बाद में जब ये बॉडी इससे टकराएगी, टकराने के बाद में इस तरफ मूव करती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, किस वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड से, ओके, क्योंकि जो कि सेकंड बॉडी से इसको मिल गया है, ओके। इसी तरह से सेकंड बॉडी मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं। इसी का हमने दूसरा एग्जांपल लिया है जिसमें कि सेकंड बॉडी को हमने रेस्ट में ले लिया, दोनों ही मासेस 20-20 kg के हैं, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है और ये रेस्ट में है, इसका u 0 है। जब ये इससे कोलाइड करती है कॉलिजन के बाद में, ये अपनी वेलोसिटी सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, और ये खुद किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है। इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है और अपनी वेलोसिटी को, अपनी एनर्जी को सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर देगी। अपनी सेकंड बॉडी जो मूव करेगी वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है इस डायरेक्शन में। क्लियर? Now students, come to the second case. If m2 is much greater than m1, जब m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा होगी, यानी सेकंड बॉडी का जो मास है वो फर्स्ट बॉडी के मास से जब बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में हम m1 टेंड्स टू 0 एक्चुअली। तो m1 का जो मास होगा, यानी फर्स्ट बॉडी का जो मास होगा m1, वो ऑलमोस्ट 0 होगा। किसके कंपैरिजन में? मास 2 के कंपैरिजन में, m2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सेकंड बॉडी के मास के कंपैरिजन फर्स्ट बॉडी का मास ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, और m2 को हमने रेस्ट में ले लिया है। जो सेकंड बॉडी है वो किस में रखी हुई है, रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में है, तो उसका u2 0 हो जाएगा। तो ये बॉडी का u1 है, इसका u2 है, u2 0 है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। जब कॉलिजन के बाद हम ये देखते हैं कि v1 v2 जो है, these are the final velocities of m1 and m2. Now students, from these formulas v1 and v2, v1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, since m2 is much greater than m1 and m1 tends to 0, then v1 equals to what actually? तो यहाँ पर m1 वाले टर्म 0 हो जाएंगे, m1 0 हो जाएगा तो माइनस m2 अपॉन m2 बचेगा, m1 0 हो गया, u1 आ गया, प्लस इसी तरह से ट्वाइस m2,
m1 0 हो गया क्योंकि ट्वाइस m2 अपॉन m2 हो जाएगा, u2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। व्हाट यू सी हियर, दिस m2 इज m2 कैंसिल आउट, यहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फाइनली यू विल गेट माइनस u1 एंड ये 0 हो जाएगा क्योंकि u2 0 है, u2 0 है, सेकंड बॉडी रेस्ट में है, इसलिए ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा सिंपली v1 माइनस u1। क्लियर। इस तरह से स्टूडेंट्स v2 हम फाइंड कर लेते हैं। v2 के केस में वही होगा, m1 0 हो जाएगा तो m2 अपॉन m2 u2, ठीक है। यहाँ पर m1 0 है क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा v2 0, u2 0 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो फाइनली आपको v2 क्या मिलेगा, 0 मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये फास्ट बॉडी u1 स्पीड से आती है और इससे टकराती है, टकराने के बाद में वापस उसी स्पीड से चली जाती है, ठीक है। देखा नहीं आपने, जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा फर्स्ट बॉडी का यानी कि v1 इज व्हाट, इट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। क्लियर। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस u1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बॉडी जो है इस डायरेक्शन में आ रही थी u1 स्पीड से, अब टकराने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, सेम विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड मींस हियर विद स्पीड u1, जैसा कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है v1 माइनस u1। माइनस साइन किसको शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। u1 इनिशियल वेलोसिटी है किसका, फास्ट बॉडी का, और v1 फाइनल वेलोसिटी किसका, फास्ट बॉडी का, ठीक है। तो फास्ट बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो उसका इनिशियल के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सेकंड बॉडी है, एक्चुअली सेकंड बॉडी पे कोई असर नहीं होता है क्योंकि सेकंड बॉडी का मास बहुत ज्यादा है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जब एक लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी से टकराती है तो हैवियर बॉडी के वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी से जब टकराती है, कोलाइड करती है, तो हैवियर बॉडी की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हैवियर बॉडी पहले रेस्ट में थी, पहले भी रेस्ट में थी और बाद में भी रेस्ट में रहती है, मींस हमने v2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने ले लिया है, सपोज करिए ये ट्रक है, ये साइकिल है, साइकिल जब इससे कोलाइड करती है, ठीक है, तो वापस उसी स्पीड से बैक हो जाती है और ट्रक की पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड केस में हमने क्या लिया, सेकंड केस में हमने m1 को ज्यादा लिया है, इफ दिस m1 इज मच ग्रेटर देन दिस m2 देन m2 टेंड्स टू 0 एंड m2 इज एट रेस्ट, तो u2 0 हो जाएगा सिंपली। तो v1 क्या मिलेगा आपको, v1 हम निकालेंगे इसी से, ठीक है, बिकॉज़ m2 इज 0 सो दिस बिकम्स m1 अपॉन m1 u1 एंड प्लस सेकंड 0 हो जाएगा क्योंकि u2 0 है, तो u2 0 है तो ये सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। एंड यू विल गेट v1 u1। क्लियर। सिमिलरली यू विल फाइंड दिस v2 हम फाइंड करेंगे बिकॉज़ m2 इज 0 सो m2 इज 0 माइनस m1 अपॉन m1 u2 हो जाएगा प्लस बिकॉज़ m2 is 0 so it becomes twice m1 upon m1 u। Clear? Now since this u2 is 0 so this first term becomes 0 and this m1 is cancel out this m1 then you will get twice u1, v2 is equal to twice u1। तो सेकंड केस में हमने देखा कि स्टूडेंट जब फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी से ज्यादा होगा, फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी से बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिएगा एक ट्रक साइकिल से आकर के टकराता है, ठीक है, साइकिल के साथ जो है साइकिल को हिट करता है इस डायरेक्शन में, साइकिल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ट्रक भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रक का स्पीड ज्यादा है साइकिल से, इसलिए ट्रक इससे कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद में हम क्या देखते हैं कि ट्रक की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ट्रक का स्पीड क्या था, u1 था, और ट्रक का फाइनल स्पीड भी क्या होगा, u1 ही होगा, जैसे कि हमने निकाला दिस v1 इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक एक्चुअली, तो v1 इज इक्वल टू u1 होगा। तो ट्रक का स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि किसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, साइकिल की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रक ने साइकिल को हिट किया और जब साइकिल को हिट करेगा तो साइकिल का स्पीड कितना होगा, तो साइकिल का स्पीड जो है वो ट्रक की वेलोसिटी के जस्ट डबल हो जाएगा। तो ट्रक का स्पीड कितना था, ट्रक का स्पीड u1 था, ठीक है। जब ये ट्रक u1 स्पीड से साइकिल को हिट करता है तो साइकिल का स्पीड ट्रक की स्पीड के डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि v2 जो है वो ट्वाइस u1 के इक्वल होगा। तो v2 इक्वल्स टू ट्वाइस u1। दिस v2 इज व्हाट, दिस v2 इज द स्पीड ऑफ द साइकिल एक्चुअली आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट समझ में आ गए होंगे कंडीशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, ठीक है नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं, कुछ बाकी आप लगाइएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।